ಪರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಿಆರ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಿಂದ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು 5 ಶಾಲೆಗಳು ಬಿಟ್ರೆ KPC ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ LKG ಇಂದ ಅಪ್ ಟು PU ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ STMC ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ NGOಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ LKG ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. LKG ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಏನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, STMC ಅವರು, CRP ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ತಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಖುಷಿಯಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯವರು ಹಾಗೂ STMC ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಠಾಣ್ ಅವರು, ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ನವೀನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅವರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ LKG ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ SDMC ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ CRP ಅವರು, ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಯೀಮ್ ಅವರು 24x7 ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿರೋದು ಪರಿವರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ UKG ಸರ್ಬೇದಿ ಅವರು ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಭಾಯ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ SDMC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के प्रिंसिपल और एक जाने माने हस्ती है एरिया के जनाब अमीन साहब और जनाब शौकत साहब, उनको मेरे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम में बुलाने का और इस प्रोग्राम को आगाज करने का एक मौका दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, आप जैसा ही मैं भी एक तालीम याफ्ता था, जब आप यहाँ पर बैठे हैं आज के 10 या 15 साल पहले ऐसी छोटी स्कूल में यानी कि मदीना स्कूल में, उसमें मेरे टीचर जनाब तासीना मैडम साहिबा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की एक बदौलत और मेरे जितने भी टीचर्स की बदौलत आज इस मुकाम में अल्लाह ने मुझे पहुंचा है, उन्हीं का भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ से अल्लाह के साथ साथ मेरे वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस मुकाम पर मुझे पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी गली में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भी तालीम हुई दिल्ली में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं सोचा था और मेरे असातिज़ा भी नहीं सोचे थे और मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे वालिदैन भी नहीं सोचे थे इस मुकाम तक अल्लाह मुझे पहुंचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरी खुशनसीब है और मेरे वालिदैन की खुशनसीब है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुंचाया, मगर इसका एक ही मकसद था और साथ साथ में यहाँ पहुंचने का एक विजन था और एक गोल था, एक हट थी जिंदगी के अंदर कुछ करना है करके। यही बच्चे जो आपके मेरे सामने हैं और मेरे असातिज़ा के सामने हैं, आप जैसे बच्चे आप जैसा आप बैठे हैं वैसा ही आज के 10 या 15 साल में पहले ऐसी गवर्नमेंट स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक आज तालीम याफ्ता होकर मेरा MBA और LLB किया। इसका जो भी हासिल किया तालीम के मैदान में, इसकी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रही, एक मुजाहिदा रहा और एक बहुत बड़ी कुर्बानी रही। ये कुर्बानी ऐसा ही नहीं आती, ये बच्चों को भाई खास तौर के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको यही मेरी एक इल्तिजा है और एक मेरी एक दरख्वास्त है कि आप कभी भी हार ना माने। आप हार मानेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप जिंदगी में कुछ पाना है और जिंदगी में कुछ लेना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है और एक मकसद को लेकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम वो मकसद को पाने के लिए। इस वजह से कि ऐसा ही एक गंदा सा यूनिफॉर्म पहनकर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये तो बच्चे पाक पहने हैं यूनिफॉर्म, एक गंदा यूनिफॉर्म पहनकर पहनने के लिए यूनिफॉर्म भी नहीं रहता था। वैसी एक जिंदगी देखकर एक गवर्नमेंट स्कूल में जब वैसा एक ड्रामा करते थे बच्चे, वही एक मिसाल है। भाई खाने के लिए या घर में कुछ नहीं रहता था उसलिए भी पढ़ाई के लिए जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मुकाम पर पहुंचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दिल में तमन्ना हुई कि ये वार्ड के अंदर हो इंशाल्लाह स्टार्टिंग ऐसे 2 स्कूल बनाना है या अडॉप्ट करना है जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल से। इस वजह से कि जिंदगी के अंदर कुछ मकसद है, कभी भी इंशाअल्लाह ये कौम के लिए हो या गरीबों के लिए हो या अवाम के लिए हो, कुछ करने का जज्बा लेकर अल्हम्दुलिल्लाह एक मैदान में उतरा हूं। आज के हालात आपको भी वाकिफ है कि क्या हालात कौम के साथ गुजर रही है। तालिब इल्म ना होने की वजह से एजुकेशन की मैदान में
ना होने की वजह से आज कौम के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, यही मकसद लेकर आज मेरा एक फिक्र थी कि खास तौर के अंदर ये छोटे से एक स्कूल को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरे मैसूर के अंदर एक मॉडल स्कूल बनाना है। इसका मकसद यही है कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे मुस्तकबिल लेकर बड़े मुस्तकबिल को कैसा तैयार करें, इस वजह से कि देश की मुस्तकबिल हो या रियासत की मुस्तकबिल हो या हमारे मैसूर की मुस्तकबिल हो या कौम की मुस्तकबिल हो, आप जैसे बच्चों से ही हो सकती है। इस वजह से कि हमारी एक बेखौफी है और हमारी एक नादानी है। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हो, वालिदैन हो, जब भी गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो एक नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं वहां पे एजुकेशन नहीं हो सकता, नहीं वहां पे टीचर स्टाफ अच्छे नहीं रहते, फिर वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता, यानी कि बेंचेस हो या कि स्मार्ट क्लासेस हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। इंशाल्लाह मेरे तरफ से क्या हो सकता है, खास तौर के अंदर स्टार्टिंग अब इंशाल्लाह मेरा तो मकसद है पूरी हिंदुस्तान के कौम के गरीबों को करने के लिए, मगर अब हमारा जितना मकसद है कि स्टार्टिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। आने वाले दिनों में यह स्कूल को इंशाल्लाह एक अडॉप्ट कर यानी कि जितना भी खर्चा हो, जितना भी कोई भी एक बेसिक एम्यूनिटीज हो या कि स्मार्ट क्लासेस हो या बेसिक एजुकेशन क्लासेस टीचर्स हो या उनको कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं आपके रूबरू रहूंगा, बिना कोई भी एक घबराने मुझे बोल सकते हैं। इसको एक ही मतलब है कि ये कौम के बच्चे आज आगे चल गए तो आने वाले दिनों में कौम का जो भी मुस्तकबिल है, जो आज कौम में एक जुल्म हो रहा है और कौम के साथ नाइंसाफी हो रही है, कौम के साथ ऐसी एक बर्ताव कर रहे हैं, इसका एक ही वजह है कि हमारे वालिदैन, हमारे जो भी हमारे लीडर्स थे उनमें एक सोच नहीं थी, एक पहचान नहीं थी कुछ करना कौम के लिए करके, सिर्फ अपनी मुफाद के लिए कर ये कौम को आज बर्बादी के रास्ते में ला लिए। मगर हमारा मकसद यह है कि आज हमारे बच्चे अच्छे होना है, हमारे बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर होना है, हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होना है, हमारे बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस होना है, तो हमारे बच्चों को सही जगह पर सही वक्त पर तालीम देंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि आने वाले 10 साल या 12 साल या 15 साल के अंदर कौम की मुस्तकबिल और इंशाल्लाह हिंदुस्तान की मुस्तकबिल और जितना भी शोबे हयात है, यानी कि माशी मैदान हो या सियासी मैदान हो या कोई भी तालीमी मैदान हो, इसमें दूर नहीं है कि हमारे बच्चे उसमें मुस्तकबिल बनेंगे, यानी कि जजेस बनेंगे, हमारे लॉयर्स बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे। मगर अभी से हम कोशिश करें तो, अभी से हम इसके बारे में सोचेंगे तो, अभी से इसके बारे में फिक्र करेंगे तो मोहल्ले के जिम्मेदार हो या मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार हो या मोहल्ले के सदर हो या यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हो, यहाँ के एमएलएस हो या स्कूल के असातिज़ा हो या यहाँ स्कूल के जितने भी अहबाब हैं, जो एसडीएम्स के सदर हैं या यहाँ के मेंबर्स हैं, आज ही से एक मुसब्बत इरादा लेकर कुछ करना है ये एरिया के लिए, कुछ करने के लिए चैलेंज किए तो वक्त दूर नहीं है कि आने वाले 10 साल या 5 साल या 15 साल के अंदर बड़े बड़े ओहदे में जाकर बैठने के लिए कोई दूर बात नहीं है। उसी के मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह ये बच्चे में ऐसा टैलेंट होता है, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे में सिर्फ एक मजबूरी यह होती है कि वो माँ बाप को पढ़ाने के लिए तकलीफ होने की वजह से वो बच्चों में एक डिसिप्लिन का इजहार नहीं होता, मगर उनको सही तरीके से उनको तराशेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह वो आने वाली मुस्तकबिल हमारी हो सकती है। इसका एक ही ये है कि छोटे आज यूकेजी का इनॉग्रेशन के लिए आज मुझे बुलाया गया था, आज से ही ये टीचर जो भी है उसका इंचार्ज लेते हैं, जो भी वहां के एक असातिज़ा होते हैं या उनको टीचिंग स्टाफ होती है, आज से इनको मोल्ड किया तो आने वाले 10 साल के अंदर वो बच्चे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे भी जा सकते हैं। मगर हमारी नेग्लेक्ट होने की वजह से, हमें कौम में नेग्लेक्ट होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं कर सकते। उसका मिसाल मैं ही हूं, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जब मेरे मिस तासीना मिस थे, ऐसा सा वक्त देखा हूं कि मुझे भगाते थे बार, पढ़ता नहीं, इन्हें कुछ करता नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आया कि इंशाल्लाह आज लोग मुझे बुला को एक इस्तकबाल करे, बहुत खुशी महसूस हुई। ऐसा ही इंशाल्लाह आप बच्चे भी इंशाल्लाह ये खुशी महसूस करना, ये खुशी महसूस करने से कौम को एक भला हो सकता है। इस वजह से कि आज चैलेंज लिए तो कुछ करना है तो हट करे तो इंशाअल्लाह कौम की मुस्तकबिल बदलना या एरिया की मुस्तकबिल बदलना कोई बड़ी दुख बात नहीं है। इस वजह से कि हमारे जितने भी एरियाज हैं, जितने भी हमारे एक मोहल्ले हैं,
ज्यादा से ज्यादा हमारे मोहल्ले में स्लम ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा हमारे मोहल्ले में मजलूमा ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा हमारे मोहल्ले में ज्यादा मैकेनिका है, हमारे मोहल्ले में वेल्डरा है, हमारे मोहल्ले में ज्यादा गांजा मारने वाले हैं। इस वजह से कि एजुकेशन तालीम नहीं होने की वजह से आज इतना माहौल खराब हो रहा है। सो यही बच्चों को सही जगह पर सही वक्त पर इनका सही भरपूर ताउन कर इनको सही जगह पर इनको तराशेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल यही बनेंगे। इंशाअल्लाह यही स्कूल को दूसरी बनाकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्कूल तामीर कर सकते हैं। इसकी मिसाल यही है कि इंशाअल्लाह एक छोटे स्कूल में पढ़ने वाला एक तालीम याफ्ता इंशाअल्लाह आज मैं एक ऐसे 2 या 3 स्कूल बनाने की एक प्लान किया हूं या लाइफ में टारगेट किया हूं बोले तो ऐसे बच्चे भी ऐसे हजारों के स्कूल बना सकते हैं। उस वजह से पेरेंट्स को भी दरखास्त कर रहा हूं कि अपने बच्चों को तालीम दे, अपने बच्चों को मुस्तकबिल बनाए, अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाए, जब भी आपकी इज्जत अफजाई हो सकती है। इस वजह से कि ये माशरे के अंदर वही इंसान की इज्जत है जो तालीम याफ्ता है। आज कितने पैसे हैं, उसके पास कितना माल है और उसके पास कितना जायदाद है वो नहीं देखा जाता। आज माशरे में यही देखा जाता है कि उसके पास तालीम कितना है, वो कितने सलाहियतमंद है, वो कितना अक्लमंद है, उसी की वैल्यू है। आज उसी के मद्देनजर रखते हुए ये बच्चों को कभी भी कोई भी ये इनको होना पड़ा तो या बेसिक कम्युनिटीज होना पड़ा या क्या भी इनको कोई भी इंतजाम होना पड़ा तो ये बच्चों के लिए इंशाअल्लाह मुझे कर सकते कॉल भी करो बिला ये कोई भी शर्माते हुए मुझे कॉल करो। इंशाअल्लाह एक मुस्तकबिल के लिए मैं तैयार हूं और साथ साथ में ये बच्चों के लिए क्या भी एक सदा का दिन बुक का इंतजाम हो या स्कॉलरशिप का इंतजाम हो, जो भी रैंक आते हैं इंशाअल्लाह यहीं से अनाउंस करके जाता हूं। जो ये बार 7th स्टैंडर्ड तक जो स्कूल है यहाँ कोई भी टॉपर आएगा तो इंशाल्लाह मेरे तरफ से चाहे पूरी क्लास के बच्चे हो 80+ आए तो इंशाल्लाह 20-20 साल तक कैश प्राइज मैं देता हूँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। इस वजह से कि आपकी हिम्मत अफजाई हुई तो ही कुछ कर सकते हैं। ये एक ही मकसद है कि आप में हिम्मत करो और एक मकसद लेकर काम करो, इंशाअल्लाह कुछ नतीजा आ सकता है। ये वजह से ये नहीं सोचो कि गरीब है, मुफलिसी है, भूख है, पढ़ नहीं सकते, वो बोल देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं पा सकते। कुछ पाना है तो कुछ कुर्बानी देना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है, मुजाहिदा करना पड़ता है। मेरा ऐसी हालत थी, पार्ट टाइम जॉब करता था फिर पढ़ाई कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब करने का पढ़ाई कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 डिग्री हासिल हुए, 2 डिग्री मैसूर के अंदर, 1 दिल्ली बैंगलोर के अंदर, 1 डिग्री मेरी दिल्ली के अंदर हुई। कोई हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जिसमें आज ये एडमिशन के लेने के लिए 50 से 60 लाख रुपए देना पड़ता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक रैंक टॉप आने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री हासिल हुई। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मेरा भी प्लान है कि इंशाअल्लाह मौका मिला तो और भी मेरी तालीम को बढ़ाओ, इंशाअल्लाह एक अच्छा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का टॉप मोस्ट एक लॉयर बनो और साथ साथ के अंदर जो भी कौम के साथ हो या गरीबी हो या कभी भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी यूनिफॉर्म की जरूरत हो या बुक्स की जरूरत हो, आपके टीचर्स को राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूं। और साथ साथ में जो भी आपको ये मोहल्ले के अंदर अच्छी स्कूल के लिए फैसिलिटीज जो करना है, जो बेसिक दूसरे स्कूल में जाकर जो हमारे बच्चों को एडमिशन करा, एक ही नतीजा इसलिए है कि हमारे बच्चे जो भी एक बेसिक एजुकेशन कम्युनिटीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे दाव है, मगर आने वाले दिनों में वो नहीं होगा। इंशाल्लाह जो भी है इंतजाम करना है इंशाल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूं, चाहे कोई साथ दो या ना दो, इंशाल्लाह ये हाथ को मालूम हो या ना मालूम हो, इंशाल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूं। यही बात करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।